Hello guys, I'm Poonam Barguja, senior faculty in the Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the changes around Earth. This is our second lecture and for the particular chapter, and today we are basically discussing the Pearson book topics or Pearson book, right? First of all, what do you mean by change? When we light a candle, it produces a flame, right? The heat produced by the flame melts the wax. After a while, you will see a difference in the size of the candle and the some melted wax rises up. जब तुम एक कैंडल को जलाते हो तो एक फ्लेम दिखती है, धीरे धीरे क्या होता है, टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है, द साइज ऑफ द कैंडल विल डिक्रीज एंड द मेल्ट, तुम्हारी वैक्स क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है एंड द विक इनसाइड द कैंडल इज wick inside the candle is burned, right, with the fire. Now अगर हम लोग देखते हैं तो बेटा ये क्या हो रहा है, कैंडल थी, कैंडल से कुछ और बन गया. दैट इज द बेसिकली अ चेंज इन द साइज, शेप, कलर एंड द स्टेट इज नोन एज द चेंज. चेंज क्या है, किसी भी सब्सटेंस का शेप या फिर साइज या फिर कलर में चेंज आना इज नोन एज द चेंज, या फिर किसी के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आना इज अ चेंज, और कोई और प्रॉपर्टी का चेंज होना इज नोन एज अ चेंज, राइट. Now, types of changes from the, this is the question. Second, first question is the from the last year, make a list of changes that you have taken place in your school. मतलब आपके स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, in your neighborhood क्या क्या चेंजेस हुए हैं, that you have to write, right? You can make the list आराम से. Now the types of the changes: fast changes, slow changes, periodic, non-periodic, reversible, irreversible, physical, chemical, undesirable, undesirable. And next, last topic is your expansion and contraction, and these changes I have already discussed in my previous lectures, but this is, I'm discussing the Pearson book along with the Pearson questions, right? Now fast changes and the slow changes, if I talk about the fast changes, are those changes which take place instantly. Fast changes are those changes which take place instant changes, जो instant होते हैं, एकदम से हो जाता है, this is known as a fast change. जैसे breaking of the glass, breaking of the egg, bursting of the balloon, explosive reaction is a fast change because पलक झपकाते ही reaction हो जाती है, that is known as a fast changes. Slow change क्या होता है, which takes a period of time to occur. जैसे कि वो दिन ले ले, घंटे ले ले, या फिर कुछ साल ले ले फॉर द रिएक्शन टू अकर इज नोन एज द स्लो चेंजेस. सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर: ग्रोइंग ऑफ अ चाइल्ड, ड्राइंग ऑफ पेंट, जर्मिनेशन ऑफ सीड, एंड यू कैन से कि slow changes, rusting of iron is the slow change. You have to, this is your question where you have to tell whether this reaction, this processes are the slow changes or the fast changes. First, if I talk about the breaking of a cup, it is a fast change because आप अगर cup को तोड़ोगे तो it will not take कि घंटे ले रहा है, minute ले रहा है, if it will break within seconds, right? So it is a fast change, right? Now, periodic and non-periodic changes. Periodic changes are those changes which occurs in a particular period of time. Means अगर मैं कह रही हूँ phases of moon 15 days में, if Amavasya is today is the Amavasya, after 15 days the Purnima will come, and after 15 days the Amavasya will come again. So basically it is a 15 days period which, or you can say weeks, or you can say years, कि इतने दिनों बाद इतनी चीजें होनी ही होनी है, that is known as the periodic changes. ठीक है, which should repeat themselves in a regular interval of time is known as the periodic change, or you can say the cyclic change, right? Non-periodic change which do not repeat at them in a regular interval are known as the non-periodic changes. Which do not repeated over a regular interval of time is known as a non-periodic change, right? Tsunami, earthquake, eruption, लैंडस्लाइड दे आर नॉन पीरियोडिक. मीन्स एक पीरियड के बाद तो नहीं होते बेटा, ये तो अपने आप जब होना है जब होते रहते हैं. नाउ classify the following into periodic and non-periodic. Sunset is a periodic change because आज सूरज डूबेगा तो कल सुबह दोबारा उग के दोबारा डूबेगा, that is known as the periodic change, right?
Next is the tsunami. Occurrence of the tsunami is a non-periodic change because एक tsunami एक particular period के बाद तो आती नहीं है. Reversible and irreversible changes. Irreversible and reversible changes are those changes. Reversible means which can be reversed. Irreversible means which can't be reversed, right? Activity की बात कर लेते हैं. Take a square sheet of paper है. First fold it into two halves, then tear it into two pieces, right? Then take a balloon and blow it into the air. Now burst it. Take apple, cut it into pieces and take few ice cubes and leave them open for some time. तो आपको ही देखना है कि whether this process is a reversible process or irreversible process. ठीक है. Now you will observe the kind of changes in the above activity कि वो चीज बेसिकली रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. तो दीज आर द एक्टिविटी के रिजल्ट्स. वी फोल्ड द शीट ऑफ पेपर, वी कैन अनफोल्ड इट अगेन. तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल. अब बलून में आप हवा भरोगे एंड ब्रस्ट कर दोगे तो ये इट कैन बी टर्न इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दिस इज इरिवर्सिबल. Once the apple is cut, it can't be formed into a uncut apple. Means अगर एप्पल को एक बार काट दिया तो काट दिया, वो दोबारा एप्पल तो नहीं बन सकता बेटा. कितना भी आप गोंद और वो सब लगा लो फेविक्विक, कुछ नहीं हो सकता. वाटर कैन बी सॉलिडिफाइड अगेन बिकॉज आइस को आपने मेल्ट किया, दोबारा से ट्रे में डाल के फ्रीज अप कर दो. तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड और यू कैन से विच कैन बी taken back into its original position is known as a reversible change. Which can't be taken back into the original position is known as irreversible changes, right? Right? Irreversible changes temporary होते हैं. Irreversible changes are permanent. Sorry, irreversible change permanent होते हैं. रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं बिकॉज मैं उसे दोबारा रिवर्स बैक कर सकती हूँ. आइस वाटर लिया, आइस वाटर से दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकती हूँ. दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज, राइट? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. तो मेकिंग ऑफ द चपाती फ्रॉम द डो इज इरिवर्सिबल बिकॉज आप चपाती से दोबारा से डो नहीं बना सकते, राइट? Next is the physical and the chemical changes. Physical changes are those changes which you can say कि जहाँ पे no new substance is going to form, कहीं पे no new substance is formed is known as the physical change, right? अब अगर मैं बात करूं बेटा केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज आर दो सब्सटेंसेस है वेयर द न्यू सब्सटेंस इज गोइंग टू फॉर्म्ड. न्यू सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, राइट? That is known as the reverse chemical and physical change, right? In the activity you will see कि फिजिक देखो यहाँ पे अगर मैं ऑमलेट की बात करती हूँ, ऑमलेट अंडे से तुमने क्या बनाया बेटा? ऑमलेट बनाया. अब ऑमलेट बन रहा है तो ऑमलेट क्या करेगा उसमें? इज अ फिजिकल चेंज. ऑमलेट बेटा अंडे से अगर तुम ऑमलेट बना रहे हो तो एक नया सब्सटेंस बन के आता है. दैट इज नोन एज द केमिकल चेंज, राइट? दिस इज नोन एज अ केमिकल चेंज. और अगर मैं बात करती हूँ बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन की, रस्टिंग का फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता देती हूँ. रस्टिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा Fe2O3.XH2O. दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आयरन का रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज Fe2O3.XH2O इज योर रस्ट. रस्ट होता क्या है? व्हेन द आयरन आर्टिकल इज पुट इन द ओपन in air and it comes in contact with the air and water, then it will basically the metal gets eroded. और तुम कहो कि उसे जंग लग जाता है, मतलब the metal is eaten up by the air and the water particles है, उसके कारण उसके ऊपर एक ब्राउनिश सा पाउडर सरफेस पे जमा हो जाता है. दैट इज नोन एज रस्टिंग एंड इट कैन बी रिवर्सिबल. इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज वो पाउडर से मैं वो दोबारा आयरन मेटल को ऑब्टेन्ड नहीं कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट इज डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंजेस. डिजायरेबल चेंजेस मतलब जो तुम चाहते हो वो चेंजेस हो. जैसे कि मैं चाहती हूँ कि कुकिंग ऑफ द फूड, मेरे को अच्छा अच्छा खाना मिले, मुझे आलू के पराठे मिले, दैट इज द डिजायरेबल चेंज. मुझे गोलगप्पे खाने को मिले, दैट इज द डिजायरेबल चेंज.
बट अनडिजायरेबल चेंजेस का मतलब सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, दैट वी नेवर नेवर वांट कि ये सब चीजें हो, फिर भी ये चीजें हो जाती है, दैट इज द डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंजेस, राइट? जैसे रॉटनिंग ऑफ द फूड, खाने का सड़ना is the rotting of the food, souring of the milk, milk का खराब हो जाना, rusting of iron, occurrence of the flood, ये सारे undesirable changes जो हम लोग नहीं चाहते still वो होते हैं। desirable changes में growing of the baby and growing of the plant and cooking of the food, chapatis, rotis, sabjis, everything, right? That is a desirable change. Now, changes cause this is you have to tell the desirable and the undesirable changes in the fifth question where occurrence of drought. अब क्या तुम चाहते हो कि कहीं पे सूखा पड़े? No, right? So it is an undesirable change. As the baking of a cake, wow. So it is a desirable change, right? Because we need कि हम केक फटाफट खाएं, तो baking of the cake is a desirable change, right? Remaining you have to do by yourself. Now the causes of the change, if I talk about the changes states of matter, changes states of matter में अगर मैं बात करती हूँ कि solid is converted into liquid, liquid is converted into gas, तो अगर मैं बात करती हूँ बेटा solid किस में convert होगा? liquid में, liquid किस में convert होगा? gas में। यहाँ पे ये इस तरफ मैं अगर जाऊंगी तो मेरे को solid से liquid जाने के लिए temperature को क्या करना पड़ेगा बेटा? टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं गैस से लिक्विड जाऊं या फिर लिक्विड से सॉलिड जाऊं तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा बेटा? कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली सॉलिड से लिक्विड जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ाओ, लिक्विड से सॉलिड आते वक्त टेम्परेचर घटाओ। तो वेट क्लोथ्स ड्राई अप व्हेन हंग आउट सन इन द सन एंड वेयर डज द वाटर गो? सबसे पहले आप कपड़े सुखाते हो बाहर, कपड़े सुखाते हो तो पानी एकदम से उड़ जाता है कुछ घंटों में, तो वेयर डज दिस वाटर गोज? तो बेसिकली जो वाटर लिक्विड था वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, राइट? व्हाई? बिकॉज इट विल गेट द हीट फ्रॉम द सन, सो वाटर वेपर्स। तो हीट फ्रॉम द सन का मतलब है टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? लिक्विड विल कन्वर्टेड इनटू गैस, और यू कैन से कि गैस की जगह वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। टेक अ बलून, blow air in it into it, try in its open end with a thread and place the balloon in the sun, and थोड़ी देर बाद आप नोटिस करो जब मैं बलून को बेटा बाहर रखूंगी, सबसे पहले बलून को फुलाया, फुलाने के बाद में उससे क्या करो बेटा? ऑब्जर्व द बलून और उसे सन में रख दो। व्हाट विल हैपन? ड्यू टू द सन रेज, द रेज विल फॉल ऑन द बलून एंड द पार्टिकल में बेटा वाइब्रेशंस होंगी, जो अंदर मॉलिक्यूल्स है उसमें वाइब्रेशंस होंगी। अगर वाइब्रेशंस होंगी तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, इट विल टच द basically it will basically collide with each other and collide with the wall of the container। अगर wall of the container से collide होंगे तो what will happen? After some time the balloon will burst, that is known as the expansion। अब contraction की बात करते हैं। Blow the balloon in the sun and slightly big, okay, this is explaining दिस इज एक्सप्लेनिंग द एक्सपेंशन, राइट? हम लोग बात करते हैं अगर कॉन्ट्रैक्शन की, तो उसी को बेटा आप वैसे वाले सरफेस में रख दो जैसे ठंडी वाले इलाके में, तो रख दो तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा। बट इफ यू प्लेस इट इनटू द हॉट समर डेज में सन में रख दोगे तो व्हाट विल हैपन? एक्सपेंशन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड द मॉलिक्यूल विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और फटाफट फट जाएगा, राइट? balloon will expand। Now this is some applications of the expansion and contraction। ये already मैं आपको अपने उस lecture में explain कर चुके। Still if you read, thermometers में expansion का काम है बेटा। दूसरा, rim of the cart will and the wire of the electricity are not strung tightly। this is very important क्योंकि वहां पे ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होके विंटर्स में क्या होता है कि एक्सप्लोजन होने का खतरा ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड नॉट स्ट्रंग वेरी टाइटली, मतलब एकदम टाइट से पैक नहीं किए जाते हैं, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इफ आई टॉक अबाउट, देयर आर द सम टू क्वेश्चंस आर देयर। व्हाई डज द ट्यूब ऑफ साइकिल टायर burst into on its own
साइकिल इफ लेफ्ट इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्यों बेटा? क्योंकि देखो अब साइकिल के अंदर क्या है, साइकिल के टायर में हवा भरी हुई है, हवा के भरने से व्हाट विल हैपन, सन में रखोगे तो हीट होगा, हीट होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अब टायर के अंदर से वॉल्यूम कांस्टेंट है तो व्हाट विल हैपन, ब्रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? ओके, थैंक यू गाइस।